नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 में। आज राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है सागरिका घोष, जो कि खुद एक जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, आज उन्होंने जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग है उसके ऊपर एक अपने सवाल में उन्होंने जिक्र किया सुधीर चौधरी का। उन्होंने नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड क्लास नेशनल ब्रॉडकास्टर को आप सुधीर चौधरी जैसे लोगों के साथ नहीं बना सकते हैं। साथ में उन्होंने ये कहा कि अब वो समय आने वाला है जब पार्लियामेंट के फ्लोर पर मीडिया ओनर्स का नाम लिया जाएगा, क्योंकि टीवी चैनल्स किसी की भी इज्जत उतार कर रख देते हैं और फिर जिस तरीके की बेइज्जती वो व्यक्ति सहता है तो फिर उसकी भरपाई टीवी चैनल्स कैसे करेंगे। उन्होंने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया, उन्होंने तमाम ऐसे लोगों के नाम लिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप दूरदर्शन को वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स का नहीं बना सकते अगर आप ऐसे लोगों की नियुक्ति करेंगे। और उसमें उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जिक्र सुधीर चौधरी का किया क्योंकि उनके खिलाफ केसेस हैं, वो जेल गए थे और किस तरीके का नफरती एजेंडा उन्होंने टीवी चैनल्स पर परोसा है उसका जिक्र आज सागरिका घोष ने किया है। लेकिन संसद में ये मुद्दा उठने के बाद क्या नरेंद्र मोदी सुधीर चौधरी की नियुक्ति को रोकेंगे? अगर जरा सी भी लाज और शर्म है अगर सरकार में, तो क्या वो सुधीर चौधरी की नियुक्ति को रोकेगी? इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आइए सुनते हैं कि टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने आज क्या कहा है और किस चर्चा के दौरान ये बातें कही हैं। आइए सुनते हैं इस पूरे टुकड़े को। जी। Thank you, sir. Sir, new media technologies are shrinking the world. India's unique identity as a vibrant democracy rooted in diversity and pluralism is an asset to the international order and needs to be projected on the global stage. This can only happen if our national broadcaster, Doordarshan, aspires to becoming truly world-class. The network Russia Today is rapidly expanding and taking the message of Russia to the world. Networks like Al Jazeera are using government funding to project the Arab voice in the world. Doordarshan can play this role, but for this it needs top-class modern content and management. 7 decades after independence, India deserves a truly world-class public broadcaster as envisaged in the 1990 Prasar Bharati Act. Sadly though, sir, there are reports that Doordarshan has entered into a lucrative contract with a private individual who indulges in deeply divisive and incendiary and hate-mongering language on television and who has faced 2 jail terms on criminal charges of extortion. It is highly disturbing to note that individuals with these terribly tainted records can become part of our proud national broadcaster. Sir, I've been a journalist for 35 years. And it's tragic to see the trivialization and character assassination and sensationalism that is today practiced in television news. Today, almost 400 licensed news channels are competing for the lowest common denominator. 4 years ago, news channels ran a motivated campaign against a film actor. Today, that film actor has been proven innocent. But what will those accusations, today all those accusations have been revealed as baseless, but who will give back to Ms. Riya Chakrabarti those years of humiliation that she endured at the hands of the media? The question arises, how can news media channels be made more responsible and accountable? Media owners will soon be called out of the floor of Parliament. Rogue anchors are a disgrace to journalism. We know that the business model of TV news is broken. So is this the new way to make profit, to unleash lies and more lies and fakery? Sir, I had the privilege of serving on the News Broadcasting Standards Authority, which was chaired by the distinguished jurist, late Justice J.S. Verma. Justice Verma would say the media should be free and responsible, not irresponsible and censored. The NBSA lacked teeth and any statutory power. However, today, an independent media industry body that upholds global standards of professional broadcasting and journalistic fairness is urgently needed. So I would just like to say that today the model of advertising funded television news is rapidly imploding. The model is imploding. And therefore, it is for this reason that the media is engaging in character assassination, the media is engaging in a witch hunt against individuals, and the media is engaging in hate.
तो बेसिकली मीडिया के रोल पर सागरिका घोष बोल रही थी कि मीडिया इस समय विच हंटिंग कर रहा है, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, लोगों का चरित्र हनन करता है और उसके लिए बड़े बड़े रोग एंकर्स को अपॉइंट किया जाता है मोटी मोटी सैलरी पर। अब दूरदर्शन के केस में वो बात कर रही थी, जाहिर सी बात है कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये सबको पता है कि किस तरीके से अभी दूरदर्शन ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है सुधीर चौधरी के साथ, जो कि सुधीर चौधरी के बारे में कोई परिचय के वो मोहताज नहीं है, किस तरीके के वो नफरती प्रोग्राम्स करते हुए आए हैं और उन्हीं की कंपनी एस्पिरिट प्राइवेट लिमिटेड के साथ दूरदर्शन ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो भी 15 करोड़ रुपए सालाना का, 15 करोड़। और ये बताया जा रहा है कि वो अपनी एक टीम लेकर आ रहे हैं, उनके लिए दूरदर्शन भवन में एक पूरा फ्लोर तैयार किया जा रहा है। लेकिन क्या इससे दूरदर्शन अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर लेगा? क्या न्यूज स्टैंडर्ड को हम इंप्रूव कर सकते हैं? लेकिन सवाल ये उठता है, वो तो जनरल टॉपिक हो गया, लेकिन बात यह है कि अगर मोदी सरकार में थोड़ी सी भी शर्म है तो वो क्या सुधीर चौधरी के नियुक्ति को निरस्त करेंगे? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा, जो कि इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जो बात आज फ्लोर ऑफ द हाउस राज्यसभा में तृणमूल सांसद सागरिका घोष ने कही, और वो भी दूरदर्शन के बारे में और सुधीर चौधरी की नियुक्ति के बारे में, आपको लगता है कि अगर ऑपोजिशन इस चीज को, आज पहले बार किसी ऑपोजिशन पार्टी ने इस चीज को मुखरता से बोला है? अभी 3 दिन पहले मैंने एक प्लेटफॉर्म पर जो फॉर्मर टीएमसी के सांसद हैं जवाहर सरकार, उनका एक इंटरव्यू किया था। वो खुद था कि सुधीर चौधरी के अपॉइंटमेंट को निरस्त करना चाहिए, ये उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार में इतनी शर्म है कि वो सुधीर चौधरी के नियुक्ति को निरस्त करेगी? आपको क्या लगता है? जी। हाँ, निर्भर करता है कि विपक्ष कितना ज्यादा दबाव लाता है, क्योंकि हमने देखा है जैसे सागरिका घोष अभी जो बोल रही थी, सागरिका घोष अपने आप में बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो जो बोल रही थी, वो उदाहरण दे रही थी अल जजीरा का और बीबीसी का, किस तरह से वो वर्ल्ड क्लास चैनल बन गए हैं अपने अपने देश की बात करते हुए। तो सागरिका घोष जब दूरदर्शन की बात कर रही थी तो वो ये मान के चल रही थी कि दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल है, तो राष्ट्रीय चैनल की तुलना वो इंग्लैंड के राष्ट्रीय चैनल बीबीसी से कर रही थी या कतर के राष्ट्रीय चैनल अल जजीरा से कर रही थी। लेकिन बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम उसको मेरे ख्याल से राष्ट्रीय चैनल नहीं मानता है, सरकारी चैनल मानता है। तो आप अगर सरकारी इस चीज को चैनल मान रहे हैं तो यहाँ पर फिर उनका नजरिया बदल जाता है। होता यह है नीलू जी कि व्यक्ति किसी संस्थान को तभी छोड़ता है जब संस्थान खुद उस व्यक्ति को मुक्त कर दे। भारत में राजनीति को समझना है तो राजनीति और खेल भारत में करीब करीब एक ही तरह से चलते हैं, इसीलिए मैं खेल का उदाहरण देके बताता हूं कि एमएस धोनी को चेन्नई सुपर किंग जितने दिन तक रिटेन करना चाहेगा तब तक एमएस धोनी दूसरी टीम के लिए नहीं खेलेंगे। अगर एमएस धोनी दूसरी टीम के लिए खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चेन्नई सुपर किंग ने उनको रिटेन नहीं किया। तो सबसे पहली बात यह है कि आज सुधीर चौधरी जी जिस चैनल में काम कर रहे हैं, मैं दूरदर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, आज के वर्तमान में वो किसी भी चैनल में काम कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि उस चैनल को चौधरी जी की उपयोगिता समाप्त हो गई है, इसीलिए वो उनको मुक्त कर रहा है। मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वो जिस चैनल में है उस चैनल में उनकी यूटिलिटी उस चैनल के अनुसार नहीं रही, इसीलिए वो उनको रिटेन करने के बदले छोड़ रहा है। अब वो छोड़ रहे हैं तो वो कहीं दूसरे जगह जाना है। अब मुझे बताइए कि व्यक्ति अगर कहीं पर किसी जगह छोड़ता है तो 6th स्टैंडर्ड पास कर जाता है, तो वापस वो 5th स्टैंडर्ड में तो नहीं जाता है, वो 7th स्टैंडर्ड में जाता है, वो प्रमोशन लेता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 4 दिन पहले लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट पर आए थे, वो किसी दूरदर्शन पर नहीं आए थे। जहां तक मुझे याद है मोदी जी 3 ही बार दूरदर्शन पे आए हैं, एक बार नोटबंदी करने के लिए, दूसरा बार लॉकडाउन करने के लिए और तीसरे बार किसानों से माफी मांगने के लिए कि हमने 3 कानून बना दिए। इसके अलावा मोदी जी दूरदर्शन पर कम और पॉडकास्ट में ज्यादा आते हैं, हर आदमी के साथ वो पॉडकास्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज लोगों को पता है कि लोग टीवी कम देखते हैं और इंटरनेट के जरिए अपने न्यूज को ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि टीवी देखने के लिए आपको एक घर चाहिए, घर में एक बड़ा सा डब्बा चाहिए, ऊपर एंटीना या केबल का वायर चाहिए और आपको घर में बैठे रहेंगे तभी आप टीवी देख सकते हैं।
जबकि मोबाइल आपके हाथ में है, तो आप 24 घंटा काम करते हुए भी जो मिस्त्री है वो काम करते करते भी अपना काम न्यूज देख लेता है। तो आज हालत यह है कि टेलीविजन केवल ग्रामीण बुजुर्ग महिलाएं देख रही हैं। ग्रामीण बुजुर्ग महिलाओं के अलावा ज्यादातर लोग टेलीविजन जो देख रहे हैं वो इंटरनेट के जरिए देख रहे हैं। तो ऐसे में सुधीर चौधरी जी ने डिमोशन क्यों ले लिया? क्योंकि आप अगर कोई प्राइवेट चैनल से दूरदर्शन पर जा रहे हैं तो दूरदर्शन का डाटा ये बताता है कि पिछले 2 साल में दूरदर्शन ने 7 करोड़ अपने क्या कहते हैं दर्शक खोए हैं। 7 करोड़ दर्शक दूरदर्शन के कम हुए हैं। तो ये बिल्कुल अब स्पष्ट है कि सुधीर चौधरी जी जिस चैनल में थे उस चैनल को सुधीर चौधरी जी की उपयोगिता नहीं थी। इसका मतलब सुधीर चौधरी जी जो चीज परोस रहे थे उस चैनल को उसमें फायदा नहीं दिख रहा था। दूसरा कोई चैनल उससे ज्यादा में सुधीर चौधरी जी को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं था। अब सुधीर चौधरी जी इसको कहते हैं राम मिलाए जोड़ी, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा। एक तरफ दूरदर्शन है जिसके कि 7 करोड़ दर्शक घट रहे हैं, दूसरे तरफ सुधीर चौधरी जी हैं जो जिस चैनल में है वो चैनल उनको रखना नहीं चाहता, दूसरा कोई चैनल लेना नहीं चाहता। इसी को कहते हैं राम मिलाए जोड़ी। इसीलिए इन्होंने दूरदर्शन को चुना। दूरदर्शन के पास भी कोई दूसरा आदमी था नहीं, क्योंकि उनको भी तो अपनी चीज जो चीज परोसनी है वो परोसने के लिए कोई बड़ा चेहरा तो चाहिए। जैसे हमें पता है कि 2 साल पहले लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर हैं, लेकिन अब उनका उम्र हो गया, रिटायर हो रहे हैं, तो बार्सिलोना और पेरिस सेंट जर्मेन जब उनको नहीं खरीदता है तो सऊदी अरेबिया के लीग में आ गए। लेकिन सऊदी अरेबिया में भले फुटबॉल कम खेला जाता हो, पैसा ज्यादा मिलता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे ख्याल से सुधीर चौधरी जी को पता है कि वो जो चीज परोस रहे हैं, और इसका बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण है। 1 साल पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भाजपा का सीट तो घटा ही, सीट तो 303 से 240 पर आया ही, उनका वोट शेयर भी घटा। तो भाजपा को भी पता है कि वो जिस तरह का इस देश में दे रही है, जो पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण की बातें कर रही है, विकास की बातें कम कर रही है, सब्र की बात कम कर रही है, कब्र की बात ज्यादा कर रही है। एक तरफ अमेरिका आसमान से आदमी को धरती पर ला रहा है और दूसरी तरफ भारत धरती खोद के मुर्दों को बाहर निकाल रहा है। तो मेरे ख्याल से सिद्धार्थ, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि सागरिका घोष ने आज इस इशू को बढ़ चढ़ के बोला है और बात इस पर की है। क्या आपको लगता है कि कोई गहन मंथन सरकार के अंदर होगा कि भाई अगर कहीं ऐसा ना हो कि लीगल चुनौतियां आ जाए सुधीर चौधरी को अपॉइंट करने में, हो सकता है उनके अपॉइंटमेंट को कोई चैलेंज कर दे, तो क्या उनके नियुक्ति पर रोक लगेगी? रोक लगने की संभावना है कि ये अगर सिर्फ टीएमसी तक सीमित नहीं रहे, विपक्ष में और भी दल हैं। ध्यान में रखिएगा, विपक्ष इस तरह की जब चर्चाएं होती हैं, जिस चर्चा में वोटिंग नहीं होती, उस चर्चा में कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपके सहयोगी दल हैं वो भी आपके विरोध में बात करते हैं, क्योंकि वहां पे वोटिंग का मामला नहीं होता है, वहां पे व्हिप जारी नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से विपक्ष काफी मजबूत है। विपक्ष को इस विषय पर आपस में बात करके, सिर्फ टीएमसी एक ही पार्टी नहीं, दूसरे पार्टी के भी लोग अगर इस विषय को जोर शोर से उठाएंगे तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार दबाव में आएगी। इससे पहले भी किसान कानून के मामले में हमने देखा है कि बहुत जोर शोर से उन्होंने लाया, लेकिन जब दबाव आया, पुशबैक आया, तो उनको वापस भी लेना पड़ा। तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक कोशिश की है कि किसी तरह से मतलब रेडार के नीचे से सुधीर चौधरी जी को दूरदर्शन में ले आए, लेकिन आपके जैसे चैनल ने, आपके जैसे गंभीर पत्रकारों ने उसको जब उजागर कर दिया, तो अब मेरे ख्याल से शायद मोदी सरकार पे प्रेशर आएगा, अगर ये प्रेशर विपक्ष के बाकी दल भी लाना शुरू करे तो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया है और उन्हीं की जो प्रोडक्शन हाउस है और जो उनकी कंपनी है स्पिरिट प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है 15 करोड़ सालाना का। तो क्या साइन होने के बाद निरस्त हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट सुधीर चौधरी का? हाँ, मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट अगर शुरू हुआ है तो उसके कुछ मतलब कानूनी दावपेच हो सकते हैं, लेकिन अगर काम शुरू नहीं हुआ है तो मेरे ख्याल से सरकार के पास इतनी ताकत होती है, सरकार के पास इतना क्या कहते हैं जुरिस्डिक्शनल पावर होता है कि वो कोई काम, जैसे मैंने अभी कहा ना कि मोदी जी ने 3 कानून तो लोकसभा में लाए थे, लेकिन जब उनके ऊपर दबाव आया तो एक दिन टीवी पर आ गए और हाथ जोड़ के बोले गलती हो गया, हमने वापस ले लिया है। तो टेक्निकली उसको लेने में भले 2-4 कुछ महीने ज्यादा लगे होंगे, क्योंकि उसी तरह का बिल आपको लोकसभा में लाके पुराना प्रस्ताव को निरस्त करना था, लेकिन वो प्रोसेस बाद में है। मेरे ख्याल से अगर दबाव विपक्ष लाएगा तो यह कॉन्ट्रैक्ट रद्द भी हो जाएगा, लेकिन यह निर्भर करता है, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं, इसमें
दूरदर्शन को एक चेहरा चाहिए था क्योंकि उसके दर्शक घट रहे थे। सुधीर चौधरी जी को एक चैनल चाहिए था क्योंकि दूसरा कोई चैनल उनको ले नहीं रहा था। इसी को कहते हैं राम मिलाए जोड़ी, दोनों डूब रहे थे, दोनों को एक दूसरे का सहारा बन गए हैं। इसको अगर विपक्ष ढंग से उठाता है कि ये कोई बहुत अच्छा डील नहीं है, ये मजबूरी का डील है, इस चीज को अगर लोग समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से मोदी सरकार दबाव में आ सकती है। लेकिन एक आखिरी सवाल बस आपसे करूंगी कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई न्यूज ब्रॉडकास्टिंग के जो एथिक्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जिन सिद्धांतों से न्यूज चैनल्स चलते हैं, उनको भी कहीं रिस्टोर करने की जरूरत है। और जिस तरीके से मीडिया ने अपनी साख खोई है, किसी भी का भी चरित्र हनन कर दो, किसी के बारे में भी कुछ भी अनाप शनाप कर दो, किसी के बारे में भी नफरती एजेंडा उगल दो। आज तो इसको सागरिका घोष ने इसको कहा, वो खुद भी एक पत्रकार है और मैं जिस चैनल में काम करती थी वो हमारी बॉस भी रह चुकी हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या टीवी चैनल्स अपनी खोई हुई साख वापस ला पाएंगे? एक समय में लोग दूरदर्शन को एक बहुत ही क्रेडिबल न्यूज, वो तरीका उनका आर्काइक और पुराने ढंग का हो सकता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी हमेशा जुड़ी होती थी। लेकिन अब तो दूरदर्शन का माउथपीस सरकार का भोपू जैसा समझते हैं। तो क्या ये चीजें, क्या टीवी चैनल सुधार सकते हैं अपनी सिद्धांत? आखिरी सवाल में जी। हाँ, मेरे ख्याल से टीवी चैनल खुशी से अपनी इच्छा से नहीं सुधारेंगे क्योंकि उनको सरकारों के द्वारा उनके पास रेवेन्यू भी आता है। एडवर्टाइजिंग, सरकार बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करती है। आप टीवी चैनल देखिए, अखबार देखिए, तो सरकारों का बहुत हर अखबार में रोज किसी न किसी सरकार का कोई न कोई इश्तेहार छपते रहता है। दूसरी बात है कि सरकारों के दबाव में भी रहते हैं। हमको पता है प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई जोशी जी नाम के शायद तथाकथित व्यक्ति हैं जो कि रोज सुबह एडिटर्स को बताते हैं। तो एक है, मैं सिर्फ दूरदर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको कि हम गोदी मीडिया इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो सत्ता के गोदी में चली गई है। तो मेरे ख्याल से वो मीडिया खुद अपने आप का परिष्कार तो नहीं करेगी, लेकिन लोग उसका जबरदस्ती परिष्कार कर देंगे क्योंकि अब जो है मामला सरकारी, मतलब गोदी मीडिया ही एकमात्र समाचार देने का सूत्र लोगों को नहीं रहा। लोग अब क्योंकि इंटरनेट पर चले गए हैं, उनके पास फोन में डाटा है, आपके जैसे जनगण मन जैसे चैनल देख रहे हैं लोग, तो मेरे ख्याल से लोगों के पास क्योंकि विकल्प बढ़ गए हैं, इसीलिए इस तरह के चैनल धीरे धीरे लोग खुद देखना कम करेंगे और तब जाके इन चैनलों के ऊपर दबाव आएगा कि मैं न तो सरकारी इश्तेहार के दबाव में अपनी स्टोरी बदलूं, न ही प्रधानमंत्री कार्यालय के किसी तथाकथित जोशी जी के कहने पर स्टोरी बदलूं। मुझे स्टोरी जो है उसको करना अगर है तो ये जनता से दबाव आएगा। मेरे ख्याल से वो शुरू हो गया है जब भारत के प्रधानमंत्री खुद उनका खुद अपना दूरदर्शन रहते हुए वो किसी लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट पर जाते हैं जो कि इंटरनेट पर चलता है, वो दूरदर्शन पे नहीं चलता, वो किसी भी नेशनल मीडिया चैनल पर नहीं चलता, वो एक ऑल्टरनेटिव मीडिया है जो वो इंटरनेट पर चलता है। तो इसका मतलब ही है कि नीचे से ऊपर तक जो लोग हैं, लोग अब मोबाइल फोन में न्यूज देखना शुरू किए हैं। मोबाइल फोन में जब वो न्यूज देखते हैं तो उनको सही और गलत और कौन अपने मन की बात बोल रहा है, कौन सच्चाई बोल रहा है और कौन किसी दूसरे का कहा हुआ बात बोल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आप खुद जनगण मन चैनल के अलावा दूसरे चैनलों में भी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सारे चैनल आप चलाते हैं। तो मान लीजिए आप किसी दूसरे चैनल पर इसी स्टोरी पर आप चैनल चलाइएगा, मतलब सुधीर चौधरी की ही स्टोरी पर अगर आप कोई एक शो चलाइएगा तो उसमें जो दूसरे गेस्ट आएंगे उनकी भाषा तो मेरी भाषा से अंतर आ जाएगा। वो मेरी ही बात को, मतलब मेरी बात को जेरॉक्स कॉपी करके तो नहीं बोलेंगे। हो सकता है विषय उसी तरह मतलब उसी पक्ष में बोले, लेकिन भाषा तो अलग हो जाएगी क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। लेकिन आज आप गोदी मीडिया देखिए, जितने भी नेशनल चैनल चलाइए रात में 8 बजे, सबके एंकर लगता है चेहरा बदल गया है लेकिन स्क्रिप्ट एक ही पढ़ रहे हैं। तो मुझे बताइए, स्क्रिप्ट एक ही पढ़ेंगे तो लोग वैसे चैनल क्यों देखेंगे? सेम चीज भी अगर देखिए, क्रिकेट मैच है, आईपीएल है, रोज 2 मैच होते हैं, दोनों क्रिकेट ही होता है, लेकिन हर मैच में थोड़ा पिच बदल जाता है, थोड़ा बॉलर बदल जाता है, किसी मैच में बैट्समैन अच्छा खेलता है, किसी मैच में बॉलर अच्छा खेलता है। तो भले वही क्रिकेट मैच है, वही 20 ओवर है, लेकिन वो हर मैच पिछले मैच का जेरॉक्स कॉपी नहीं होता, इसीलिए लोग देखने में उनको रुचि होती है। आज आप गोदी मीडिया का चैनल देखिए, रात में 9 बजे चैनल कोई भी लगा लीजिए आप, हर चैनल में एंकर बदल जाता है, स्टोरी वही रहती है, बोलने का तरीका भी वही रहता है, प्रेजेंटेशन भी वही रहता है। तो लोग इसीलिए गोदी मीडिया से उब चुके हैं। सुधीर चौधरी जी वो जिस चैनल में काम कर रहे हैं, वो चैनल खुद कह रहा है कि भैया अब हम तुमको नहीं रख सकते, दूसरा चैनल कोई उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। अब दूरदर्शन के पास
खुद उसके दर्शक घट रहे हैं, तो मरता क्या न करता, डूबता क्या न करता, राम मिलाए जोड़ी आगे बोलना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि फिर किसी को आपत्ति हो जाएगी। राम मिलाए जोड़ी में सब समझ जाते हैं कि दो मजबूर लोगों का ये गठबंधन है। ये कोई ताकतवर लोगों का क्या कहते हैं, प्रभावशाली लोगों का गठबंधन नहीं है, ये दो मजबूर लोगों का गठबंधन है, इसीलिए राम मिलाए जोड़ी है। चलिए, तो लेकिन अब मोदी जी में और मोदी सरकार में जरा सी भी शर्म होगी तो आज वो जरूर इसको रिव्यू करेंगे कि ये मुद्दा अगर संसद के अंदर सुधीर चौधरी की नियुक्ति का मामला अगर आज आया है तो क्या इस पर सोचा विचारा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।